Hello first year students, once again I welcome you all in this online session of classes. So today in this lecture we are going to start unit number 4, and in this unit number 4 very first topic is, or the name of the chapter or the very first topic is analytical geometry. Okay, that's analytical geometry in unit number 4, and in this we are going to study coordinate geometry. We can say analytical geometry में हम लोग क्या study करते हैं, coordinate geometry. अब ये जो coordinate geometry topic है, that this topic you have already studied in your standard 10th standard chapter number 7 coordinate geometry. Okay, if it Cartesian geometry you can also say that. Now in this coordinate geometry first thing which you have to study is sign of the coordinates, और टॉपिक भी लिखा हुआ है सिलेबस में sign of the coordinates. मतलब अब यहाँ पे कोई भी जैसे पॉइंट है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा साइन, नेगेटिव होगा, वो आप लोगों ने देखना है. दिस इज कार्टेशियन प्लेन. दिस होल सिस्टम इज नोन एज कार्टेशियन सिस्टम और कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम आल्सो. ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, horizontal axis is known as x axis and vertical axis is known as y axis, x dash, y and y dash, and where both the axes meet is known as origin, where the coordinate of the point is 0, 0. ये आप सब लोगों ने स्टडी किया है. अभी देखिए फ्रेंड्स, दिस होल कार्टेशियन प्लेन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 4 quadrants. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं. अब मान लीजिए अगर कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसा होता है, और उसका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव. मतलब अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर x कोऑर्डिनेट में कोई है वो भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. कैसे पता चलता है फ्रेंड, देखिए ये जो एरिया है, दिस एरिया इज एनक्लोज्ड बाय पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस. दैट्स व्हाई हियर बोथ द कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर पॉजिटिव. अगर आप इस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में देखें, सेकंड क्वाड्रेंट में सॉरी, तो यहाँ पे नेचर कैसा होगा, x axis will be positive and y coordinate will be sorry it's opposite I think. X coordinate will be negative and y coordinate will be positive, and in the third quadrant both are negative. ठीक है, x dash y dash, but in fourth quadrant x coordinate is positive and y coordinate is negative. Like ठीक है, in this way you can distinguish all the quadrants in the Cartesian system or in Cartesian plane. Now the very important topic which is included or introduced in this chapter which you have already studied is distance formula. ठीक है, मेन जो टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला. So the distance formula is AB, or we can say small t, is equals to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ठीक है, now let us see what for distance formula is used. अगर आपसे कोई पूछे what for distance formula is used or what is distance formula or why we have to use distance formula, ठीक है. So distance formula is used to find out the distance between, or the length we can say distance between 2 points. Let us say the first point is A and second point is B. Now if we have to find out the distance between these 2 points, you are needed the coordinates of these 2 points. That is the points which you have to find out the distance in between. You will be required the coordinates of those 2 points. For example, we are having one length AB, so we need the coordinates of these 2 points. Point A, let us say that is x1, y1, and B is x2, y2. If it is so, then you can find out the distance AB by this formula, square root of x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ठीक है, let's do one very basic question using this formula. Let us write down an example. Let find the distance between A, that is minus 3, 5 and B, that is 4, 0. ये दो पॉइंट्स हैं, A is minus 3, 5 and B is 4, 0, and you have to find out the distance between these 2 points. ठीक है, now you can write down solution. See, if you have to find out the distance, you will use distance formula. So you can write down using distance formula.
AB is equals to square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, जिन दो पॉइंट्स के बीच में आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है a और b के बीच में, a फर्स्ट पॉइंट है, b सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स के अज्यूम कर लीजिए x1, y1 और सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स के अज्यूम कर लीजिए x2, y2। तो दिस इज x1 y1, x2 y2, so put down all the values। x2 is 4 minus, now x1 की वैल्यू क्या है -3, so you can put one bracket whole square plus y2 is 0 minus y1 is 5, so minus minus plus, ठीक है, so 4 plus 3 whole square and 0 minus 5 it's minus 5 whole square। See, 4 plus 3 will be 7, so 7 का square that is 49 and minus 5 का square is plus 25, so you can add 9 plus 5 will give you 14, so it's 74, it's square root 74, square root 74 तो it's not a perfect square, ठीक है। if it would have been like 64 तब हो जाता 8, 81 तो it's 9, so 74 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, so you can leave your answer up to like here only, AB is equals to root 74 unit। Must mention this unit, why we are putting this unit, because हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सर डिस्टेंस कैसा होता है, सेंटीमीटर, मीटर, फीट, इंच, यार्ड्स, इस टाइप से, ठीक है, बट वी डोंट नो व्हाट्स द यूनिट, सो यू जस्ट मेंशन यूनिट, ठीक है। अब सर द क्वेश्चन इज कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। पेपर क्वेश्चंस क्या होता है, देखो आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं, आप लोगों को क्या गिवन होगा, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। I will not do the whole question, I am just saying, for example, 2 points are given to you, let us say this, sorry, not 4 points are given to you, sorry, A, B, C, like this, like that, show that A, B, C, D, A के coordinates भी given है, B के coordinates भी given है, C के coordinates भी given है, D के coordinates भी given है, and you are said that show that A, B, C, D are the vertices of a square, A, B, C, D are the vertices of a स्क्वायर, ये आप लोग को प्रूव करना है, तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स। अभी देखो स्क्वायर की कैरेक्टरिस्टिक या फिर स्पेशलिटी या फिर क्वालिटी या फिर डेफिनेशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स, और सॉरी ऑल द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो उसमें आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, अगर स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर प्रूव करना है, तो उसमें आप फिर सारी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको सारे कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, सी भी गिवन होगा, डी भी गिवन होगा, ठीक है। फिर आप लोगों को बोला जाएगा कि प्रूव दैट दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, सो आप ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, सी डी फाइंड करेंगे, डी ए फाइंड करेंगे, डी ए फाइंड करोगे, ए डी फाइंड करोगे, सेम थिंग, ठीक है। सो सारे डिस्टेंसेस जब आप फाइंड करेंगे तो सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल। लेट अस मान लीजिए अगर सबका वैल्यू आ रही है √5 या फिर √6, कुछ भी वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यूज आ रही है, सो दैट मींस दीस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, बट with that you have to also prove one thing। सुन देखो, क्योंकि ना we have generally have 4 type of figures क्वेश्चन में जो पेपर में आती हैं, वो है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस, ठीक है। अब स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। ये 4 टाइप के फिगर्स हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इनमें ना कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है। देखो अब बात करते हैं स्क्वायर और रोम्बस की। सबसे पहले स्क्वायर और रोम्बस में क्या स्पेशलिटी, सॉरी सिमिलैरिटी क्या है कि स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अभी क्या दोनों सेम होते हैं? नो, सेम नहीं है, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या है, देखो कि इन दोनों के डायगोनल्स का डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। AC will be equals to BD। तो अगर आपको स्क्वायर प्रूव करने के लिए बोला जाए ना, तो सारे की सारी साइड्स भी इक्वल प्रूव करनी है और डायगोनल्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल, मतलब साइड की इक्वल नहीं। AC should be equals to BD। क्या होना चाहिए, लिखा AB equals to BC is equals to CD is equals to DA। ये फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि AC should also be equals to BD, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर।
अब अगर बात करें रोम्बस की, ठीक है, अगर हम बात करें रोम्बस की, ठीक है, जहां मर्जी एबीसीडी स्टार्ट कर लो, एबीसीडी, ठीक है, तो एबीसीडी के लिए क्या है, सबसे पहले तो सारे के सारे साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और इनके डायगोनल्स इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब BD शुड नॉट बी इक्वल टू AC। अगर इक्वल डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर, और अगर अनइक्वल है तो रोम्बस। तो देख लीजिए जो भी आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए तो देख लेना, स्क्वायर करना होगा तो इक्वल आ रहे होंगे, और अगर रोम्बस करना होगा तो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू रेक्टेंगुलर पैराग्राफ। रेक्टेंगल में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आ रही है, ठीक है, अगर हम इसकी साइड थोड़ी सी और बढ़ा रहे हैं, A B C and D, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल, और AD किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल, ठीक है ना। AD will be equal to BC and AB will be equal to DC, opposite sides are equal, और diagonals are also equal, मतलब AC will be equal to BD, जो AC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल, ठीक है, रेक्टेंगल में। अब आते हैं पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या सिमिलैरिटी है, किसे उनके अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और डिफरेंस क्या है कि अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो दैट इज अ रेक्टेंगल, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो जाएगा पैरेललोग्राम। ओके, सो all the sides are equal and the two diagonals are equal, then it's a square. All the sides are equal but the diagonals are not equal to each other, then it's rhombus. If opposite sides are equal and their diagonals are also equal, it's a rectangle. And if opposite sides are equal and diagonals are not equal to each other, आपस में equal नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। So these are the definitions of all these four figures, ठीक है। एंगल भी होता है, ठीक है, लेकिन एंगल आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लोग नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है, प्रूव नहीं कर सकते, तो आप लोगों को सिर्फ ये चीजें दिखानी है। अगर क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स 100%, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आ जाएगा या तो स्क्वायर का प्रूव करने के लिए बोलेगा या फिर पैरेललोग्राम का, तो उसमें आपको सारे डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं, ठीक है, करीब 6 डिस्टेंसेस आप लोग को फाइंड करने पड़ेंगे। AB भी फाइंड करना पड़ेगा, BC, CD, AC, BD, तो ये फॉर्मूला आप लोग को 6 टाइम्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की, ये स्क्वायर और पैरेललोग्राम, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज आई हैव रेफर्ड यू वन बुक ऑफ डॉक्टर PK शर्मा, ठीक है, ऑफ दिस रेमेडियल मैथमेटिक्स, यू कैन रेफर दैट बुक, और दिस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी इजीली अवेलेबल टू यू इन द NCERT book of 10th standard also, and you can download some questions from net also, take internet also. If you want, then I can assign you some assignment questions for this chapter which you can practice, ठीक है, in which this distance formula can be used, and of this type of questions which we have to use, which we have to prove that these are the vertices of square, parallelogram, rhombus and rectangle. Okay, so in this video we are just stopping here only. The next video we will start the next topic, which is in this chapter only, analytical geometry, but that next topic we will study in the next video. So thank you and have a nice day.